Good afternoon, dear student. Hello. Yes. Yes, ma'am, clear. Okay. Okay. No doubt. Say that is okay. So very good strength now. Okay. So a very good afternoon to dear students. Okay. So today, yesterday we have cleared the concept of what for loop and how for loop will executed, and what are the conditions we are going to check that whether in for loop initialization is necessary, whether in for loop condition is necessary, whether in for loop incrementation, post incrementation we can say pre-implementation is necessary. We have seen all the possibilities on for loop. Okay, and I'm so happy that to congratulate to all the students, those who have joined the FDS classroom, online GDB classroom, and most of the students have daily uploaded the assignment that I have given to you, and everyone has saw it and updated it. Some of the students asked the questions, so I'm so happy that everyone has participated in actively made. Okay, so before that, I must say it's very good thing that in second year some of the students have always in actively made. Okay, fine. So 42, the strength is 2 lifts now, according to your class strength. Okay, now, so before starting it, I start the basic concepts of while loop. I hope there is no problem regarding for loop, right? किसी को डाउट होगा तो पूछो सो दैट आई विल अगेन एक्सप्लेन नो प्रॉब्लम. जितना आप लोग कंसेप्ट अभी क्लियर करोगे सेकेंड ईयर में उतना बेनिफिशियल रहेगा डियर स्टूडेंट. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये बेसिक चीजें जब क्लियर होगी तो ही हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं. एक्चुअल हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कंसेप्ट सीख सकते हैं. ओके, so everyone has to concentrate on that point. Basics are very very important, dear student. Okay, so I hope all the students have joined the lecture now. Okay, so today we are going to focus on while loop. Okay, so first of all, we are going to see the slides here. That is what is the syntax of while loop. Okay, so what is the syntax here? Just everyone should concentrate. First one, we have to do the initialization. Then while keyword in rounded bracket there is condition is given. In curly bracket plays main role in while loop because while loop having two statements. One, one is the statement that we want to execute, and the next one increment or decrement. Okay, so this is a syntax of while loop. The while loop statement in C or C++ programming, it's repeatedly executes a target statement as long as given condition is true. Means till condition is true, the statement get executed. When condition get false, then while loop also automatically stop. Okay, so this is the syntax that we are going to see today. That is how while loop will executed. At that time, we have to clear how to do the debugging in online GDB because how to execute it step by step वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब तक आपको जब मैं इटरेशन आपको सिखा रही थी फॉर लूप में कि i=1 i=2 कैसे होगा कब होगा वो हम थेरोटिकली कब सीख सकते हैं जब हमें उसका ऑटोमेटिकली जो प्रोग्रामेटिकली थ्रू कैसे एग्जीक्यूशन होता है स्टेप बाय स्टेप वो आज हम लोगों को देखना है. वो भी हम लोग देखने वाले हैं. ओके, so I hope everyone clear the syntax of while loop. Okay, again I will write here the syntax of while loop. हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं concentrating on online GDB. Okay, so everyone should understand it. Okay, so what is the syntax of first one is what initialization. What is the syntax? Initialization we have to do. Is it visible now, everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay, so if we want to, if we're getting large, okay, fine. This is much better, right? Okay, fine. So here, first of all, we have to do the initialization part. Okay, semicolon. Then while keyword we have to use. Before that, we have to write this is what syntax of for loop. Okay, so we are writing all the commented part in program also. Okay, so this is what syntax of while loop. Okay, so what exactly difference in while loop and for loop ये हम लोगों को देखना है. Sorry, while loop and do while loop both are the same thing, just
syntax is different and representation is different, nothing else. Okay, so while keyword, we have to give the rounded bracket and give the condition there. Okay, you have to write the condition which you want. Then curly brackets plays main role in our while loop, because मैंने क्या बोला था, जब हम लोग एक लूप लिखते हैं, ओके, उसके बाद करली ब्रैकेट्स नहीं दे रही मैं, सपोज इसका मीनिंग हो गया कि while लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. बट डियर स्टूडेंट, व्हेन वी हैव टू परफॉर्म मोर देन वन स्टेटमेंट इन while लूप, देन वी हैव टू गिव द करली ब्रैकेट्स हियर. ओके, तो यहाँ पे आएंगे हमारे स्टेटमेंट्स. ओके, तो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट दिस इज प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारा क्या होगा, व्हाइल लूप कंप्लीट होगा. ओके, सो सिमिलर रोल प्लेड, दैट इज इन फॉर लूप जो काम कर रहा है वही व्हाइल लूप कर रहा है, वही डू व्हाइल लूप कर रहा है, सिर्फ उसका सिंटैक्स डिफरेंट है. सो कौन से प्रोग्राम के लिए कौन से लॉजिक के वक्त हमें व्हाइल लूप यूज करना है, कौन से लॉजिक के वक्त फॉर लूप यूज करना है, ये हमें जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो ही क्लियर होगा. ओके, सो आई होप एवरीवन क्लियर दिस. ओके, आफ्टर दैट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअल एक प्रोग्राम स्टेटमेंट देखते हैं, देन वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. ओके, हमें डिबगिंग भी आज हम लोगों को देखना है. ओके, सो लेट्स से अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई वांट टू प्रिंट, माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्रिंट 1 to 5 नंबर. ओके, मुझे क्या करना है, 1 to 5 नंबर प्रिंट करने हैं यूजिंग व्हाइल. सेम प्रोग्राम हम लोग इससे भी करते हैं और while for loop से भी करते हैं. ओके, फाइन. So what is the first line in here, that is no doubt it is in what everyone clear that it should be started from main. How it is started वो सब हम लोगों को देखना. Okay, so integer I am taking one variable, that is I. Most favorite variable, always we are using I here. Okay, I equals to what, 1. Okay, so first क्या करना है, first part will be the initialization. Always remember that comment is very important, that is initialization we are doing. Okay, initialization किया हम लोगों ने. After that we have to display 1 to 5 numbers. So no doubt while loop हम लोगों को लगाना है, while keyword is important, then rounded bracket, then in which we have to write the condition. So what is the condition, what the condition is required, let's say I am writing there I is less than 5. Okay, I is what, less than 5. When I am writing means what exactly happened we are going to see. This is what condition given. Okay, so likewise when we are giving the comment to our program, so it's more understandable next time when you are going to see the code. Dear student, these codes are very simple, but when you are actually doing the 1000 lines of code, at that time it's very difficult to understand how exactly we have done in this program. Okay, that's why we require, the basic thing is that we have to give the comment of each and every line, so that it should be very clear that what we are going to do means every point you should clear. Okay, so while loop के अंदर हमें क्या करना है, अभी डिस्प्ले करना है. क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट 1 to 5 नंबर. ओके, तो सी आउट में लिख रही हूँ, सी आउट, देन मुझे क्या प्रिंट करना है, आई, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्लैश टी दे रही हूँ, मतलब यहाँ पे टैब आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए. ओके, सो ये मैंने किया. आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाइल कंडीशन के अंदर, व्हाइल लूप जब हम लोग यूज कर रहे हैं, कंडीशन दिया, स्टेटमेंट दिया, देन वी हैव टू परफॉर्म इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो नो डाउट बेसिकली मैंने आई 1 से स्टार्ट किया है, तो आई शुड इंक्रीमेंट इट. सपोज मैंने आई 5 से किया होता तो मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ता था. मतलब ये इनिशियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है व्हाइल लूप में, कि हम लोग प्लस प्लस कर रहे हैं या माइनस माइनस कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं. आई होप एवरीवन क्लियर. तो यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस किया, सेमी कोलन, देन आई एम राइटिंग हियर दिस इज व्हाट, इंक्रीमेंटेशन. इंक्रीमेंट मैंने किया. ओके, दिस इज आवर कोडिंग. ओके, तो अभी मैं क्या करूँ, उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है. ओके, फाइन एवरीवन. ओके, फाइन, दिस इज आवर कोड. अभी मैं रन कर रही हूँ, विल चेक द आउटपुट हियर. ओके, yes, it will give me the output that 1 2 3 4. Okay, so I want to display print number 1 to 5. So is it the right condition here in while loop? It's not right condition. Yes, because I have to print 1 to 5 number, means I have to give the equal to operator here. Means what? It should be display, I should be start from 1, I should be
1 2 3 4 द लास्ट वन 5, मतलब फर्स्ट इटरेशन जो होगा i इक्वल्स टू 1 होगा, व्हाइल लूप में जाएगा 1 इज लेस देन 5, यस अंदर जाएगा, डिस्प्ले करेगा, i को प्लस प्लस करेगा, मतलब i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i को प्लस प्लस करने के बाद कितना इंक्रीमेंट होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 1 से exactly means I equal to I plus 1, the value of I will be 1. So everyone is remember that in for loop, while loop, condition it execute till condition get false. कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक हम लोग while loop के बाहर नहीं आ सकते, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1, अगेन ये ऊपर जाएगा, 1 is less than or equal to 5, yes, again it will goes inside, again see out I, okay, मतलब हमें क्या होगा, सेकंड नंबर डिस्प्ले होगा, दैट इज 2, okay, then again I 2 डिस्प्ले हुआ, I plus plus means I equal to I plus 1, so value will be the I क्या होगी 2, अगेन ये ऊपर जाएगा, 2 is less than or equal to 5, कब तक चलेगा वो, जब तक 2 भी डिस्प्ले होगा, अगेन I plus plus I getting 3, again it will goes to upper side, again it will check 3 is less than or equal to 5, yes अंदर जाएगा, again it will display I plus plus, the value of I will be 4, 4 is less than or equal to 5, yes again it will goes inside, means जब तक condition true है तब तक हमारा while loop execute होगा, then it will display the value will be 4, then again I plus plus, what is the value of I, that is 5, yes it will check 5 is less than or equal to 5, yes it's not less than but it is equal to 5, again it will come into the loop, then see out 5 I plus plus, dear student I plus plus करने के बाद I कितना होगा अभी in last condition, this is the value of I 6, 5 हो गया डिस्प्ले करके, अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, यस 4 डिस्प्ले हो गया था, देन आई इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने, वैल्यू होगी 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इक्वल टू है, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, तो अंदर जाएगा वो फिर से डिस्प्ले करेगा, लेट्स से मैं क्या करती हूँ, फिर से रन करती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा, okay, yes it will give the output that is 5, why it has given the 5 output, because we have given equal to operator, means it shows 5 value, again 5 डिस्प्ले करने के बाद हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है I equal to I plus 1, that is I plus plus, so what is the value of I here, tell me what is the value of I, yes लूप के अंदर मैंने सी आउट कर दिया है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, yes anybody 2, अरे I इंक्रीमेंट तो होगा ही ना, पहले I की वैल्यू क्या थी 1, देन 2 1 1, 1 इज लेस देन 5, अंदर जाएगा प्रिंट Yes. होगा I प्लस प्लस, डियर स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज, उसका मैं डिबगिंग करके आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, सो दैट आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, आई होप एवरीवन इज क्लियर, ओके, सो नाउ मैं अभी क्या बता रही हूँ उसके ऊपर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके, सो अभी आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो सारे हम लोग डिबगिंग सीखते हैं, जो मैं बोल रही हूँ आई कब इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है तब हो रहा है, मुझे लग रहा है तब हो रहा है, ऐसा नहीं है, इट शुड बी अ कंपाइलर एग्जीक्यूशन, इट विल एग्जीक्यूट वन बाय वन, उसका एग्जीक्यूशन हमें सीखना यूजिंग डिबग, so everyone, how many participants, 49 participants are there, so everyone should concentrate how code will be debugging, how it will executed step by step, okay, so उसके लिए पहले आपका हमेशा याद रखो, प्रोग्राम डिबग करने के लिए प्रोग्राम एरर फ्री होना चाहिए, मींस सिंटैक्टिकल एरर फ्री, लॉजिकल एरर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिबगिंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पूरा कोड राइट होता है बट आंसर नहीं आ रहा है, एट दैट टाइम लॉजिकल एरर आर देयर, और जब हमारा सिंटैक्स गलत होता है तो सिंटैक्टिकल एरर दिखाता है कंपाइलर, बट आई नीड टू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर, इसके लिए हमें डिबगिंग सीखना बहुत जरूरी है, तो अभी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, अभी लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन डिबग ऑप्शन, ओके, ऊपर जो अपर साइड में जो डिबग ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है, ओके, क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताती हूँ, क्लिक करने के बाद आप लोगों को ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है, बिफोर दैट आई वांट टू शो वन स्लाइड that is very important, okay, so is it visible everyone, it is visible, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सो व्हाट एग्जैक्टली डिबगर क्या है ये? आप एवरीवन यूजिंग ऑनलाइन जीडीबी में आप लोग लेट से देखते हो, डिबग पे क्लिक करते हो तो बहुत अच्छा मैनुअल उन्होंने दिया है। व्हाट इज डिबगर, हाउ टू यूज इट? Debugger is utility that runs target program in control environment where you can control execution of program and see the state of program when program is paused. Yes. So debugging जो हम लोग सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन उसका कैसे होगा वो हम लोगों को देखना है। ओके, तो उसके लिए मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। जब मैंने डिबग बटन पे प्रेस किया, उसके बाद हम लोगों को ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे दिख रहा है सबको इमेज पे, यहाँ पे लेट से मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये क्या बोल रहा है, क्लिकिंग हियर विल सेट ब्रेक पॉइंट ऑन गिवन लाइन नंबर। मतलब मुझे कहाँ से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना है उसके लिए मुझे ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब मैं ब्रेक पॉइंट लगाती हूँ, नीचे जो अपना आउटपुट दिखता है, इनपुट जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू ये जो बटन है, उसके नीचे ब्रेक पॉइंट का डिटेल्स आता है। ओके, सेकेंड थिंग मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। जब हम लोग डिबग बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है। ओके, और जैसे मैंने लाइन नंबर 12 पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट स्टार्ट होता है, मतलब अपना एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, जहाँ से हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वो दिखा रहा है, देखो ब्लैक लाइन पे दिखा रहा है कि हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट सेट किया है उस लाइन पे, लाइन नंबर 12। यस, लाइन नंबर 12 इज गिवन। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर इज दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हो, वी हैव टू डू द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है तो हमारा डिबगिंग स्टार्ट होता है। इफ यू वांट टू पॉज, कंटिन्यू कब यूज करना है, स्टेप ओवर कब करना है, स्टेप इनटू करना है। कंटिन्यू कब करना है, जब हमारा पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा और हम लोगों को ब्रेक पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं तो कंटिन्यू प्रेस करना है। बट स्टेप इनफो ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय line. Okay, and step over means execute program line by line but don't go inside function call. Yes, जब मुझे फिर से एग्जीक्यूट नहीं करना है तो मुझे क्या करना है, स्टेप ओवर करना है। ओके, सो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है ये मैं बताती हूँ। मतलब हम लोगों को देखना है ये कॉल स्टैक क्या है। ये कॉल स्टैक की जो विंडो आती है, कॉल स्टैक मीन्स व्हाट, हमारा प्रोग्राम क्या कौन से लाइन का एग्जीक्यूशन कर रहा है। ये स्टैक मतलब क्या, हम लोगों को पता है स्टैक मीन्स व्हाट, हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट शेल्फ पे जो बुक्स, लेट से आप लोगों ने बुक्स अरेंज किए हैं सेकंड ईयर के, और फर्स्ट शेल्फ का जो बुक है वो आपको निकालना होगा। मुझे लेट से मैंने डीएम डीएसए एनी एंड ओपी रखा है, मुझे डीएम निकालना है तो मुझे पहले ओपी को रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली जो करंट एग्जीक्यूशन की लाइन रहेगी वो स्टैक में स्टोर होगी। ओके, तो स्टैक के बारे में हम लोग विल सी इन लेटर व्हेन स्टैक विल स्टार्ट। ओके, बिफोर दैट वी नीड टू फोकस ऑन नेक्स्ट लाइन, दैट इज लोकल वेरिएबल। सच में जो हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम लोगों को चेक करनी है, whether it is incremented or decremented. Okay, after that we are going to see, this is what we are going to set multiple breakpoint here. breakpoint मतलब वहां से हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। ओके, एंड व्हाट आर दिस पॉइंट, यहाँ पे कॉल स्टैक, लोकल वेरिएबल, और ये डिस्प्ले एनी एक्सप्रेशन एंटर, आप हम लोग अभी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रेक पॉइंट्स, मतलब हम मोर देन वन ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। ओके, और आप लोगों को एंटर एनी कमांड ऑन जीडीबी वाया कंसोल, आपको कुछ कमांड लाइन प्रोग्राम करने होंगे, रन टाइम इनपुट देना होगा तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ईच एंड एवरी। ओके, सो before that I hope everyone is clear that point. After that we are going to start our main, that is how it will do. Okay, so basically मैं अभी फिर से स्टॉप कर रही हूँ इसको, आई एम गोइंग टू स्टॉप। मैंने फिर से मैं बता रही हूँ, डिबगिंग के लिए हमारा प्रोग्राम क्या होना चाहिए, रनेबल स्टेट में होना चाहिए पहली तो बात। ओके, तो ये रन हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, तो अभी हम लोग डिबगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं जो हमने ये कमेंट लिखा ये सब निकाल देती हूँ, सो दैट ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हम लोगों को देखना है। ओके, सो वी ऑल आर हियर। ओके, सो अभी क्या करना है, मैंने डिबग बटन पे क्लिक किया। ओके फाइन, तो यहाँ पे देखो कॉल स्टैक आ गया, लोकल वेरिएबल, डिस्प्ले एक्सप्रेशन, ब्रेक पॉइंट एंड ऑल पॉइंट वी आर गोइंग टू सी। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन हियर। ओके, इफ आई एम प्रेसिंग स्टार्ट बटन पे प्रेस कर देना है। ओके, स्टार्ट बटन पे प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, इज इट विजिबल एवरीवन? ओके, ये जो रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, दिस इज योर ब्रेक पॉइंट।
यहाँ से मेरा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होगा। वट एवर यू वांट, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप लोग कर सकते हैं। ओके, लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे चेंजेस देखो सब लोग। अभी मैंने क्या किया, पहले ब्रेक पॉइंट लगाना है, मतलब मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा इस लाइन से। मुझे सच में देखना है आई में वैल्यू जा रही है नहीं जा रही है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन। ओके, सो यहाँ पे उसे दिखा दिया, देखो ब्लैक विंडो पे, देन ब्रेक पॉइंट 1 मेन फंक्शन में एट मेन डॉट सीपीपी कोलन 15, इस 15 लाइन पे मैंने ब्रेक पॉइंट सेट किया है। और वो लाइन का कोड क्या है, मैंने क्या लिखा है कि आई हैव इनिशियलाइज्ड वन वेरिएबल दैट इज आई, द वैल्यू विल बी 1। ओके, सो एवरीवन इज एग्री विद दिस। सो कॉल स्टैक में भी क्या दिख रहा है, देखो स्टैक में दिख रहा है कि स्टैक में हमेशा जो करंट जो लाइन है, जिस लाइन का एग्जीक्यूशन होता है उसका एड्रेस स्टैक के अंदर स्टोर होता है। ये इंटरनल स्टैक है, इसको बोला जाता है इंटरनल स्टैक। सिस्टम के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, जो करंट एग्जीक्यूशन रहेगा वहाँ उसका जो एड्रेस रहेगा वो कॉल स्टैक में स्टोर हो जाएगा। और लोकल वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, आई। सो आई वेरिएबल यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, 0। अभी मुझे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए, बिफोर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर डिस्प्ले एक्सप्रेशन, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। और मैंने कितने ब्रेक पॉइंट्स लगाए, सिर्फ एक लगाए, इसलिए इससे एक की वैल्यू वो दिखा रहा है। ओके, और वी हैव टू फोकस ऑन दिस लोकल वेरिएबल आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें देखना है आई की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्टेप इनटू। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जब अब मैंने क्या किया, डिबग पे प्रेस किया, देन ब्रेक पॉइंट सेट किया, स्टार्ट किया, उसके बाद वी सिंपली प्रेस स्टेप इनफो। यस, स्टेप इनफो मतलब क्या, वो लाइन बाय लाइन स्टेप आगे जा रहा है। देखो अभी आपको दिख रहा है वेरिएबल आई की वैल्यू क्या होगी, लोकल वेरिएबल में देखो जो साइड की जो ब्लू कलर की विंडो है उसके अंदर आप लोगों ने देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ, आई वैल्यू विल बी व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, 1. यस। तो 1 हो गया, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अभी मैं स्टेप इनफो कर रही हूँ नेक्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट लाइन में गया, इसका मतलब है उसने कंडीशन चेक किया। वो अंदर कैसे गया, कौन बताएगा, क्यों अंदर गया, वो व्हाइल लूप के अंदर कैसे गया, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि यस एनीबडी कैन गिव मी द आंसर, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या थी, 1, 1 इज लेस देन 5, एवरीवन एग्री। जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो ही वो व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, अदरवाइज इट विल गोज आउटसाइड ऑफ द व्हाइल लूप। आई होप एवरीवन इज एग्री। इसीलिए वो क्या कर रहा है, देखो अभी वो लाइन नंबर 18 पे गया है एग्जीक्यूशन के लिए, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, हम लोगों ने लोकल वेरिएबल में देखा आई इक्वल्स टू 1, एवरीवन एग्री विद दिस। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अगेन वी हैव टू प्रेस, डियर स्टूडेंट, इन ऑल द बटन्स we have to concentrate on debug button, start button and step info. डोंट प्रेस स्टेप ओवर एंड ऑल, जब तक कंडीशन हमारे पूरे स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होते तब तक स्टेप ओवर नहीं करना है। देन क्लिक ऑन स्टेप इनफो, यस, इट विल गोज नेक्स्ट लाइन दैट इज आई प्लस प्लस, एवरीवन इज एग्री विद दिस, एवरीवन क्लियर दिस। मतलब हमारा सी आउट आई भी हो गया, अभी वो क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस की तरफ गया। जब मैं स्टेप इनफो करूंगी, जस्ट चेक डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ, अभी चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल आई, 2. yes, 2. so yes, so it incremented by 1, the value of I will be 2। अगेन वो लूप, ये देखो मैं सिर्फ स्टेप इनफो कर रही हूँ, मतलब कौन ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे जा रहा है, कौन जा रहा है ऊपर नीचे, कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कर रहा है। अभी देखो 2, अभी फिर से व्हाइल पे आके रुक गया वो, अभी मैं स्टेप इनफो करूंगी तो वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, एनीबडी कैन गिव मी द आंसर, जाएगा. यस, जाएगा. यस, व्हाई, बिकॉज Yes. आई की वैल्यू क्या है, I less than equal to 5. yes, exactly. So I am pressing step info. It will go inside. Again, it will give the yes C out. वो वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। Then again step info. Yes, it will go the next line that is I plus plus. When I am pressing it, मतलब मैं क्या करूँ, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो what is the value of I now? Check the local variable here. Yes, what is the value of I? That is 3. 3. 3, yes, again 3, फिर से वो while पे ऊपर अटका है, देखो while, for loop, do while loop, always remember that जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हम लोग बाहर नहीं आ सकते। so what is the value of I now, that is 3, 3 is less than or equal to 5, yes, तो फिर से क्या होने वाला है, जब मैं स्टेप इनफो करूंगी अंदर जाएगा, अगेन I प्लस प्लस होगा हमारा। ओके, इसने 3 को भी डिस्प्ले कर दिया, अगेन स्टेप इनफो, यस, तो अभी वो कहाँ गया, इंक्रीमेंट की तरफ गया।
again I perform step by step execution कर रहा है, yes. So what is the value of I now? That is I की value क्या हो गई 4. अभी? Yes. 4. Again 4 is less than or equal to 5. Yes. Again वो अंदर जाएगा, means फिर से मुझे step info करना है, automatically जाएगा. Again it will display the value of 4. Then again मैं क्या करूँगी? Step info, that is I plus plus. Okay. So what is the value of I now? That is 5. Okay. Again it will check condition whether it is true. Whether it is true. I की value क्या है अभी? 5 है. 5 is less than or equal to 5. Yes. Yes. Okay, so it will go inside. Yes. So it again print that value. Again it will print, that is the value will be what? 5. Then again I am pressing step info. It will go I plus plus. अभी देखो magic क्या है. Okay. What is the value of 6? I. What is the value of I now? 6. Yes. Six. अभी मुझे बोलो, अभी ये कंडीशन क्या हो गई? False. 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 तो उसने अंदर जाना चाहिए क्या? नहीं. नहीं. Yes, ये देखो डायरेक्टली उसने कहा जंप किया, देखो इट विल नॉट गो इनटू साइड नहीं. बिकॉज यस डायरेक्टली वो रिटर्न कर रहा है जब मैं स्टेप इनको बोल रही हूँ, या फिर क्या हो गया, मेरी स्टेप क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब मेरा एग्जीक्यूशन क्या हो गया, इसलिए मैं क्या करूँ, स्टेप ओवर कर रही हूँ, इसका मतलब है मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे फिनिश हो गया. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर हाउ वी आर गोइंग टू चेक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन. क्लियर एवरीवन? सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. अभी ये सिंपल कोड है इसलिए हम लोगों को तुरंत क्लिक होता है, बट जब हम लोग बहुत बड़ा कोड करेंगे एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर. दैट टाइम दिस स्टेप बाय डिबगिंग प्रोसेस इज वेरी helpful to us that finding out the logical error in program. Okay, so I hope everyone is clear. जब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो कंटिन्यू किया, मैंने देखा कंटिन्यू किया तो उसने सारा आउटपुट दिखाया, देखो. तो फाइनली जब डिबगिंग करने के बाद हम लोगों को दिख गया कि हम लोगों ने ये सारे एलिमेंट प्रिंट किए थे. तो हम लोग ऐसे रन टाइम 2 3 4 हमें जितने ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं उतने लगा सकते हैं. ब्रेक पॉइंट लगाने का मीनिंग क्या है, हम लोगों को कहाँ से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखना है. कभी कभी प्रोग्राम में 10 12 फंक्शंस होते हैं, तो लेट से एक ही फंक्शन में एरर है और मैं पूरे कोड को डिबगिंग कर रही हूँ, तो इतना इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब. सो वी कैन सेट this breakpoint to particular function, then we can easily identify the error of that function. Okay, तो इसीलिए ब्रेक पॉइंट का मीनिंग है कि हम लोग पूरा कोड क्यों स्कैन करते बैठे, जहां पे एरर आएगा उसको ही हमें ब्रेक पॉइंट लगाना है. Okay, so I hope everyone is clear that point. So shall I stop it? Stop that debugging part. Okay, so I'm asking one question to all. So tell me the steps to do the debugging now. Debugging करने के लिए कौन से steps हम लोगों ने follow किए हैं? Today we have covered while loop plus debugging. Okay, so what is that? Who will going to tell? Debugging कैसे करते हैं? Anybody can give me the answer because yes, how to do the Firstly, debug? program run करना. दीपक Yes. दीपक पर क्लिक करना है. Okay, then after debugging, मैम Yeah. ब्रेक पॉइंट लगाना है. okay, Break. okay, then yes, जैसे मैं फिर से स्टार्ट. okay, debugging, then breakpoint set किया, after that start, then Start into. yes, Step into. yes. मैं स्टॉप करती हूँ, पहला वाला प्रॉपरली स्टॉप नहीं हुआ इसलिए इशू दिखा रहा. हम लोग इसको पहले रन करते हैं. आई होप एवरीवन इज क्लियर. नो डिफिकल्टी रिगार्डिंग डिबगिंग. ये डिबगिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आना जरूरी है, तो ही कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है वो जब तक समझता नहीं है तब तक हम लोग कोड नहीं बना सकते खुद के. ओके, सो मैंने डिबगिंग पे क्लिक किया. ओके, देन आई विल सेट ब्रेक पॉइंट हियर. ओके, देन आई हैव टू स्टार्ट बटन, एंड कौन सा बटन प्रेस करना है? जस्ट प्रेस स्टेप. यस. Step into. Okay, fine. Very good, dear student. So likewise, we have done the while loop plus debugging. Okay. Then we have to concentrate on. I hope everyone clear the debugging process. So I'm going to stop now that debugging. Now we have to focus on the main part, that is we have seen while loop
then debugging. Now this code I need to convert into do while loop. Okay, so what is the syntax of do while loop? That we need to see. Okay, so what is the do while? Yes, so what is the do while is just concentrate this presentation. That is what is for and do while loops. It's the do while loop in C or C++ programming checks its condition at the bottom of the loop. Yes, हमारी जो condition है वो loop के bottom में होती है. Do while loop is similar to a while loop except that the do while loop is guaranteed to execute at least one time. Yes, same code we need to execute here. And what exactly we are going to do, just tell me, dear student. I hope everyone clear the do while loop also. Okay, so the syntax is that, what is the syntax? First of all we have to perform the operation. Do while का syntax क्या आएगा, कौन बताएगा? इसी प्रोग्राम को हम लोग do while में convert करने वाले हैं. So what is the syntax now? Dear student, do while and for, these three loops working as the same, only syntax is different. Okay, so just I am writing here, मुझे syntax लिखना है. Syntax of what? Syntax of do while loop. Okay, we have to use do while loop here. Okay, so what is the syntax? It just do first, do. Initial. Yes, then what is the meaning of do here? Everyone just concentrate here. Do means पहले आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करो, देन कंडीशन चेक करो. ये समझ में आया सबको? मतलब do के पहले ही हमारा क्या रहेगा? इनिशियलाइजेशन रहेगा. आई होप एवरीवन इज एग्री. इनिशियलाइजेशन Yeah. do के ऊपर रहेगा. इनिशियलाइजेशन से do while टाइटल में ही मीनिंग है. देखो, do while मतलब पहले आप क्या करो, पहले एग्जीक्यूट स्टेटमेंट. यस, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, देन यस यस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, देन क्या करो, उसके बाद Use हमारा of यस उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट रहेगा, और कंडीशन कहाँ चेक करो, एंड में चेक करो. दिस इज अ डिफरेंस. लास्ट में. yes, this is a difference between while loop and do while loop, dear student. so क्या different लगा आप लोगों को? while के बाद क्या होना चाहिए? सेमी कोलन. okay, so this is a difference in do while loop. okay, while loop में हमने क्या सीखा? what is the syntax in while loop? while loop में क्या था? इनिशियलाइजेशन है. while मतलब पहले while कीवर्ड, पहले कंडीशन चेक कर, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर. वेदर कंडीशन इज ट्रू, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड. यहाँ पे क्या है? डू. पहले क्या कर तू? डू में क्या हो रहा है? First execute statement, then check the condition. I hope everyone is agree. So this is the syntax of what? Do while loop. So how it will executed, इसी कोड को हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं और चेक करते हैं whether it is working or not. I hope everyone agree. Okay, initialization part is same. तो मैं क्या कर रही हूँ? ये कंडीशन को यहाँ से हटा रही हूँ. Okay, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? Do. After that we have to perform this operation. क्या करना है? मुझे डिस्प्ले करने हैं. सेम कोड है हमारा. प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या है? we have to print 1 to 5 number using do while loop. Okay. Yes, just mute on your side, dear student. Okay, fine. Yes, just mute it. नाही सांगितलं ना. नाही घ्या. अबे लाडको बी घेऊन उपयोग नाही काय. Okay, so just concentrate here what I'm saying. So what we have done here, just use do, then curly bracket start. Our condition is given, that is we have written the executed statement, and till end of curly brackets we have to write the condition. That's it. This is the difference. मतलब पहले ऑपरेशन करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो. while loop में क्या है? पहले कंडीशन चेक करो, देन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करो. आई होप एवरीवन इज क्लियर. इसको हम लोग क्या करते हैं? अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, श्वेता, जादव, प्लीज, जादव सर, जस्ट म्यूट ऑन योर साइड. okay, so I hope everyone is clear this thing. Fine. So I just want to run that code. We are going to run it. Yes, it will show the same output, dear student. मतलब यहाँ पे उसने क्या किया? Everyone should be clear. First do the operation, then check condition. That's it. So I'm giving some assignments to classroom, so everyone has to submit it. Okay.
Okay, fine. So any doubt you can ask. Okay. Again, here we can give the debugging process. We can do it and we can check the value when statement is executed and what exactly happened. Okay. So I will check it here. Yes, I'm starting debugging. Then set breakpoint here. I'm setting breakpoint. Then start it. Then it will go execution. Okay. Just check it. First display array. What is the value of I? Yes, it will give. Then first it will take value and then